हरे कृष्णा. सो चैतन्य चरितमृत चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 59. तो अभी तक हमने चतुश्लोकी भागवतम सुना, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने. उसके बाद गुरु की वंदना करते करते कृष्ण करणामृत के पद की रचना को यहाँ पे उल्लेख किया है, जो लिखा गया है बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा, और कुछ तात्पर्य में थोड़ा उनका इतिहास भी बताया गया है. After that, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is saying that an ordinary person will not be able to experience the presence of super soul, and he appears before us. The super soul appeared, that's why. So the super soul appears before everyone in the form of a liberated devotee. And such a spiritual master, such a pure devotee as a spiritual master is none other than Krishna himself. जीवे साक्षात नाही ताते चैत्य रूपे गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान. So this is the verse we are going to take, 59th verse. ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास छिन्दन्ति मनोव्यसंगम उक्तिभिः. One should therefore avoid bad company and associate only with devotees. With their realized instructions, such saints can cut the knot connecting one with activities unfavorable to devotional service. So why one should associate devotees? Because through devotees only he will be able to associate a pure devotee who is a representative of Supreme Lord, because an ordinary person cannot experience the presence of Paramatma in front of himself. That's why he has to associate with devotees. Asat sangatyagat ei Vaishnava acharana. Mahaprabhu also says the key to success in devotional service is disassociate with non-devotees. Chanakya Pandit says again one more verse. त्याज दुर्जर संसर्गम भज साधु समागमम करो पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम. दुर्जन व्यक्तियों का संग त्याग करना, भगवान की सेवा भगवान के भक्तों में संग में करना, अर्थात दुर्जन व्यक्तियों को संग त्यागना तो मतलब है सत्संग करना. भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा साधुओं के संग में, भगवान के भक्तों के संग में करना. ऐसे में आप अनर्थ निवृत्ति के लिए साधना करेंगे. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम. इसलिए करो पुण्य महोरात्रम. इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता. दिन रात पुण्य अर्जन करेंगे. स्मरण नित्यम अनित्यतम. ऑलवेज रिमेंबर द टेम्परेरीनेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. तभी तो अर्जेंसी आएगी. तो टेम्परेरीनेस नहीं पता तो फिर क्या अर्जेंसी कैसे आएगी. सो सिमिलरली दिस वर्स विच अपीयर्स इन श्रीमद् भागवतम, ये जो वर्स अभी जो बोल रहे 59th, that verse appears in Srimad Bhagavatam. Chindanti manah vyasangam uktibihi. And this verse is spoken by Lord Krishna to Uddhava in Uddhav Gita, 11th canto. And this discussion relates to the story of Pururava and the heavenly Apsara, that is Urvashi. When Urvashi left Pururava, he was deeply affected by the separation and had to learn to overcome his grief. So this is a very important pastime in Srimad Bhagavatam. Many of you may not have reached here in the 11th canto, wherein Pururava was very fond of Urvashi, and because Urvashi was also cursed, she was bound to marry a human, and Pururava was so much attached to the beauty of Urvashi that he forgotten everything. Although Pururava is a devotee of Vishnu, Vishnu gave darshan to him also. There was a time when Vishnu gave darshan to him. But still, illusory energy is so strong, in spite of having darshan of Lord, still a living entity can be destroyed. The Maya can destroy that particular person. Like for example, in Mahaprabhu,
when there was a disciple known as Kala Krishna Das. In the presence of Mahaprabhu, he was attracted by Bhattahari, by the prostitutes. So there Prabhupada writes that Maya is so strong, even in the presence of Lord, Maya can attract you. So what to talk about when you don't have any darshan of Lord and no realization? Because Daivi Gunamai, Daivi Shakti, Mama Maya Duratya, Krishna says, my Maya is insurmountable. Mameva prapadyante, even if you have darshan of Lord but you are not surrendered towards Lord, there is a high chance that you will fall in Maya. So the Pururava was so much attached, and Urvashi gave condition before getting married. Urvashi gave some conditions that if these conditions are fulfilled, then only I will stay with you. One of the condition was that apart from sexual activity, any other time you should never be completely naked. I should never see you completely naked. And secondly, she have some lambs, and they should be under the custody of Pururava. No one should take away them. तो ऐसे conditions थे, एक दो conditions थे. A time came when some person, there was some person and he was not able to keep those lamb in custody, and when he came to know, because at night he was completely naked and he just ran without wearing any clothes, Pururava, and Urvashi saw that, and then Urvashi stopped him and said, "Now I have to leave." And Pururava was crying like anything. You will find this pastime detailed in Srimad Bhagavatam. You can read from that. So that way, then when Urvashi left Pururava, he was so deeply agitated and affected by the separation. And how to tolerate that, how to overcome that, I think in that particular part, the Aila Geet is recited. Now, it's very popular, Aila Geet. So it is indicated that to learn the transcendental science, it is imperative that, I am reading from the purport now, it is indicated that to learn the transcendental science, it is imperative that one avoid the company of undesirable persons and always seek the company of saints, sages who are able to impart lessons of transcendental knowledge. So asatsang अलग अलग प्रकार के होते हैं. स्त्री संगी संग. One of the asatsang is women's association, and more danger is that a person who is attached to woman associating that person. Scriptures talk about that. Obviously for women it will be vice versa. The question may arise that why only women's association, why not men's association? Then we can speculate in this way that those times the scriptures were read by specially men only, and that's why to curb the tendency of enjoyment, the tendency to enjoy woman, many such harsh words are used. But Kapil Muni very broadly specifies, mentions in 3rd canto that for a woman accepting service from man is death, and for a man accepting service from woman is death. So very broadly mentioned it, so you can refer that also. So obviously the attachment between man and woman is the most dangerous thing in this material world. Pumsam striya mituni bhava metham tayor mata hridyanti mahu atho griha kshetra sutapta ruppe vittay janasya moham aham mameti. As soon as there is attachment between man and woman, there is a need of house, there is a need of property, there is a need of child, relatives, so-called activities, extra activities will add up, and you have to perform all those things. No time for spiritual life. Janasya aham moham aham memeti, and me, myself, this kind of attitude will expand. That's why Kapil Muni many a time advised asatsang, how to disassociate. A person who is progressing his spiritual life, he should disassociate with beautiful women. ऐसे कई बार इसमें लिखा है. वदंति या निरय द्वारमस्य,
It's a doorway to hell. मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंतिया निरयद्वारमस्य. For a person who is elevated spiritually, for him associating a beautiful woman is hell. Similarly, vice versa for a woman also. That's why one should associate with saints and sages who are able to impart lessons of transcendental knowledge. So what happened in the association of saints and sages is Shravanam Kirtanam Vishnu. उससे क्या हो गई? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति. From that your attachment towards Lord will increase, bhakti devotion towards Lord will increase, shraddha ratir bhakti, faith, rati is attachment, rati is ruchi also, taste, prem, shraddha ratir bhakti and devotion all will increase just by associating with devotees. Satam prasangam mama virya sangyo samvido. And in association he will learn the pastimes of the Lord which will enter through years into his heart, and the heart will be get purified. Satam prasanga mama virya samyudo. And satam prasanga ajaram pasham atmana kavayo vidu savayo sadusha krita mokshadvaram apavratang prasangam ajaram pasham. The attachment which led to bondage, the same attachment to devotees will open the doors of liberation. Srimad Bhagavatam again. There are so many words for this. You can write down if you want the verse. Prasangam ajaram pasham atmano kavayo vidu saeva sadhu shakrita mokshadvaram apavritam. Mokshadvara, mukti के द्वार खुल जाते हैं. किसके? जिसका अटैचमेंट डिवोटीज से हो जाता है इसका अटैचमेंट. So the potent words of such realized souls penetrate the heart, thereby eradicating all misgivings. From the purport I am reading. The potent words of such realized souls penetrate the heart, thereby eradicating all misgivings, accumulated through years of undesirable association. तो अनर्थ, मिसगिविंग्स मतलब क्या? अनर्थ, जिसका अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं है उसे कहते हैं अनर्थ. ऐसे अनर्थों को नष्ट करते हैं क्या? साधु संग. For a neophyte devotee, there are two kinds of person whose association is undesirable. Gross materialists who constantly engage in sense gratification. Second, unbelievers do not serve the Supreme Personality of Godhead, but serve the senses and their mental whims in terms of the respective speculative habits. मनोरथे नास्ति धावतो बही. मन के रथ पे आरूढ़ रह के इंद्रियों की तृप्ति करना. ऐसे लोग भोगी लोग हैं, उनका संग लेना. जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका संग लेना. और जो बहुत नितांत कर्मी लोग हैं, सदैव इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं. पहले जो कर्मी लोग जो सदैव इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐसे लोग. दूसरे लोग वो जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखते हैं. ऐसे लोगों को जो संग है दोनों हानिकारक है. भले ही भगवान पे फेथ है पर कर्मी है, ऐसे लोगों का भी संग नहीं लेना चाहिए. दूसरा वो जो भगवान की फेथ ही नहीं है, ऐसे लोगों का भी संग नहीं लेना. अनइंटेलिजेंट पर्सन सीकिंग ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन शुड वेरी स्क्रूपुलसली अवॉइड देयर कंपनी. So that's why it is very important to choose our association. And choosing our association requires intelligence also. Okay. Okay, Hare Krishna. So I was just continuing that association. In Updesh Amrit it is written how to associate with devotees. Krishneti yasya mansa Krishneti yasya girinta mansadriyata dikshasya cheta pranatibhishya bhajampitamisham Shushrushaya bhajanam ananyamasya nindadi shunyam ipsita sangalabdhya. So one who is a devotee of Lord, non-initiated, one who is chanting the holy name of the Lord, one should offer obeisances in mind. The second stage is one who has taken initiation, one should offer obeisances by Panchang Pranam at least, or by doing at least Hare Krishna. Shushrushaya bhajanam ananyamasya, one who is serving Lord without any ulterior motive, serving Lord always.
one who is completely engaged, one who is an उत्तम भक्त, one especially one who is शुश्र भजन, अनन्य मत से, अनन्य भाव से जो भजन करते हैं, ऐसे लोगों की हमको सेवा करनी चाहिए. We should serve them. And last is निंदादि शून्यम, one who never criticizes. One should associate with that person. Ipsita Sangalabdhya, always associate with that person who never criticize. So obviously he is an Uttan Bhakta, he is always engaged in service of the Lord, he don't have any time for critically evaluate anyone. But yes, Guru can criticize a disciple, that's a different case, but unnecessarily never criticize, he never gossip. Vacho Vegam. Yes. One 60th verse, the same verse which I have quoted again from Bhagavatam, that is Satam prasangan mama virya samvido bhavantirit karana rasayanah kataha tajjoshanadashva apavarga vartmani shraddharatir bhaktiranukramishati. Note this verse, very important. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in the society of devotees. And it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens, and gradually one attains firm faith that in due course develops into attraction, that is rati, and devotion, that is bhakti. Okay? Shraddha, ratir, bhakti. Faith then develops into attraction and then devotion. So this verse appears in Srimad Bhagavatam 3.25.25, where Kapil Deva replies to the questions of his mother Devahuti about the process of devotional service. As one advances in devotional activities, the process becomes progressively clear and more encouraging. Unless one gets this spiritual encouragement by following the instructions of the spiritual master, it is not possible to make advancement. Therefore, one's development of a taste for executing this instruction is the test of one's devotional service. So, what is the test of one's devotional service? That development of a taste for executing the instructions. Instructions of whom? Spiritual master. Initially, one must develop confidence by hearing the science of devotion from a qualified spiritual master. Then, as he associates with devotees and tries to adopt the means instructed by spiritual master in his own life, his misgivings and other obstacles are vanquished by his execution of devotional service. So, the main thing is that satisfying spiritual master by following his instructions. Before that, he should have developed confidence and immense faith in the science of devotion by hearing from spiritual master. And then when he associates with devotees, he must try to adopt some means which are already instructed by spiritual master in his own life, especially to destroy his anarthas. And automatically what will happen when you follow the instructions of spiritual master, his anarthas and whatever hurdles in devotional service are there, that will be gradually coming out. And strong attachment for the transcendental service of the Lord develops as he continues listening to the messages of Godhead, and if he steadfastly proceeds in this way, he is certainly elevated to spontaneous love for the Supreme Personality of Godhead. तो प्रारंभिक अवस्था में श्रद्धा होती है, साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति. उसके बीच में श्रद्धा और साधु संग के बाद जो बीच में जो है गुरु पादाश्रय भी आता है. साधु संग में ही गुरु पादाश्रय आता है. श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया, उसमें साधना होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, सब इसको बहुत समय लगता है. ये बहुत स्टेज ऐसा है कि इसमें बहुत समय लग जाता है. अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा आती है. 1 करोड़ रुपए देने के बाद क्या चाय पी लेंगे आप? निष्ठा डिपेंड करता है ना, निष्ठा हिल भी सकता है. आज के दिन चाय पी लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में फिर से स्टॉक फॉलो कर देंगे, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, भक्ति सेट हो जाएगी मेरी, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. तो आज के दिन चाय पी लेता हूँ. निष्ठा हिल सकती है. तो निष्ठा कभी कभी कहाँ पे निष्ठा होती है, स्थान काल समय के बाद हमारी निष्ठा भी बदलती है.
जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल मास्टर या वैष्णव हमारे सामने है तो निष्ठा बहुत तीव्र रहती है, जब कोई नहीं है सामने अकेले है तो निष्ठा पूरा डगमग जाती है, ऐसे हो सकता है। तो वैसे नहीं, एकांत में हो, सबके सामने हो, निष्ठा कायम रहती है। निष्ठा, फिर इसके बाद रुचि, फिर आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण हो जाती है, भाव, प्रेम, 9 स्टेज अगेन। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो प्रेम आखिरी स्टेज है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन हु इज इन द स्टेज ऑफ एट द स्टेज ऑफ अ प्रेम ऑल्सो, बट ही विल नेवर लीव श्रवण एंड कीर्तन, स्टिल हियरिंग एंड टॉकिंग अबाउट लॉर्ड और परफॉर्मिंग कीर्तन ऑफ लॉर्ड, ये कभी नहीं छोड़ा जाता। आप कितने भी स्तर पे चले जाओ, श्रवण और कीर्तन ये कभी नहीं छोड़ा जा सकता। नेक्स्ट वर्स 1.61। सो अभी तक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बता रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया कि कैसे आपकी रति भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, श्रद्धा कैसे हमकी तीव्र होगी, किससे होगी, भगवान के भक्तों के संग में। और भगवान के भक्तों के संग में आने के बाद ही अध्यात्म गुरु की प्राप्ति होती है, और अध्यात्म गुरु के निर्देशों का पालन करने से ही व्यक्ति को पोषण मिलता है, जिससे वह अनर्थों को मात दे सकता है। नहीं तो अनर्थों को मात देने के लिए हमारे पास बल नहीं है, बल है नहीं, एक्चुअली बल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो बल कहाँ से आता है, स्पिरिचुअल मास्टर से। टू से नो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। हर किसी के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन अलग अलग स्तर पे हो सकता है। सो 1.61, ईश्वर स्वरूप भक्ता ताराधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। उसके पहले भी 2-3 वर्ष पहले एक वर्ष था ना, शिक्षा गुरु का भी, और जीवे साक्षात नहीं ताते, ये भी इंपॉर्टेंट वर्स है, तो इसको मार्क करते जाइए। नाउ 61, a pure devotee constantly engaged in the loving service of the Lord is identical with the Lord। और एक जगह पैरेलली चैतन्य चंद्र लिखते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे निज सम। दीक्षा के समय पे ही व्यक्ति जब आत्मसमर्पण कर देता है गुरु के प्रति, भगवान उसी दिन से उसको अपना फैमिली मेंबर बना देते हैं। तो यहाँ पे तो बात होती है कोई शुद्ध भक्ति की, दीक्षा तो होके उसके कई दिन हो गए रहेंगे और वो शुद्ध भक्त बन गया है। तो प्योर डिवोटी कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज नथिंग ग्रेट, नो नथिंग एक्सेप्शनल। अगर ही इज ऑलवेज एंगेज इन devotional service of the Lord, so it is natural that he will become identical with the Lord in quality, who is always seated in his heart. Why? Because Krishna is always seated in his heart. तीर्थम भूतम स्वयं विभो, स्वयं और तीर्थ स्थान बन जाए। तीर्थ स्थान जाने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह ही बिकम्स पिलग्रिमेज पर्सोनिफाइड। भवद्विदा भागवतास तीर्थम भूत स्वयं भव तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि सो अंतस्थेन गदावृत। युधिष्ठिर महाराज जब विदुर को कई दिन के बाद मिले तो वो विदुर कहते हैं कि मैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए गया था। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या आवश्यकता है तीर्थ भ्रमण करने की, क्योंकि आप स्वयं तीर्थ हैं। स्वांतस्थेन, आपके अंतर में कौन है, गदावृत, गदाधारी करने विष्णु। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड परपट, the supreme personality of Godhead is one without a second and therefore he is all powerful, he has inconceivable energies, अचिंत शक्तियाँ उनके पास, of which 3 are principal। So the 3 basic, this is knowledge, the 3 shaktis of Lord are अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। okay, internal potency, external potency and marginal potency। internal अंतरंगा, okay, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, बहिरंगा दुर्गा महामाया, and tatastha jeev। So the devotee is considered to be one of these energies, never the energetic. Actually devotee is of energy only. The energetic is always the supreme Lord. The energies are related to him for the purpose of eternal service. A living entity in the conditioned stage can uncover his aptitude for serving the absolute truth. A devotee can uncover his aptitude for serving the absolute truth बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। आप किस भाव में हैं, किस स्तर पे हैं, आपके संबंध क्या है भगवान से, ये भगवान की कृपा से ही आप समझ सकते हैं, आपके प्रयास से नहीं। आपके प्रयास पूरी तरह
पर्याप्त नहीं है, आपका प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रयास तो करना पड़ेगा पर पर्याप्त नहीं है वो, आपको भगवान की कृपा भी चाहिए साथ में. तो देन द लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ विद इन हिज हार्ट एंड ही कैन नो दैट कृष्णा इज सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी प्योर डिवोटी. Krishna is actually seated in the heart of every living entity, but only a devotee can realize this fact. So कई बार होता है ना कि इतने बार भक्ति करे रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, तो रियलाइजेशन देना है कि नहीं देना है वो भगवान के ऊपर है ना. आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु माम अदर्शम व मर्मतो करोतो वा यथा तथा सित धातु लंपटो मत प्राणनाथ स्वयतु नः. चैतन्य शिक्षा अष्टकम में ये वर्ष है जिसे महाप्रभु कहते हैं, इफ़ यू वांट टू गिव दर्शन गिव मी दर्शन, इफ़ यू डोंट वांट टू गिव मी दर्शन फॉर इनन्यूमरस ईयर्स नो प्रॉब्लम, डोंट गिव मी दर्शन. इफ़ यू वांट टू एम्ब्रेस मी, इफ़ यू डोंट वांट टू एम्ब्रेस मी, किक मी, यू किक मी, बट स्टिल यू विल बी ऑलवेज माई मास्टर लाइफ आफ्टर लाइफ. दिस इज द डिवोशन, दिस डिवोशन इज एक्सपेक्टेड. 1.62 ऑल द वर्सेस आर इंपॉर्टेंट ना, अभी जितने भी वर्सेस है वो सब इंपॉर्टेंट वर्सेस है. साधयो हृदय महयम साधुनाम हृदय त्वहम मदन्यत जानाति नाहम तेभ्य मनागपि. अम्बरीश महाराज चरित्र, दिस वर्स इज कमिंग फ्रॉम when in Durvasa Muni is in trap and is taking shelter of Vishnu. सुदर्शन भी आपका है, भक्त भी आपका, सुदर्शन भी आपका, तो आपके हाथ में होना चाहिए. माँ विष्णु ने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर किए, हरे कृष्णा, मेरे हाथ में कुछ नहीं. सेंट्स आर माई हार्ट, विष्णु इज सेइंग टू दुर्वासा, सेंट्स आर माई हार्ट एंड ओनली आई एम देयर हार्ट्स. They do not know anyone but me, and therefore I do not recognize anyone besides them as mine. कौन हो दुर्वा साहब, मैं नहीं जानता. So this verse appears in Srimad Bhagavatam in connection with a misunderstanding between Durvasa Muni and Maharaj Ambrish. Actually misunderstanding किसने किया, दुर्वासा मुनि ने किया, अम्बरीश महाराज ने नहीं किया. एकादशी का पारायण कर रहे हैं, अब पारायण करने का समय हो चल रहा है और दुर्वासा मुनि जानबूझकर रुके हुए, वो परीक्षा ले रहे हैं अम्बरीश महाराज का, और एकादशी पारायण करना है. तो दुर्वासा मुनि आ रहे नहीं हैं, अतिथि करके आने वाले थे पर आए नहीं. अम्बरीश महाराज असमंजस में है कि क्या करें, फास्टिंग तोड़े या नहीं तोड़े. तो ब्राह्मणों से विचार विनिमय करने के बाद ब्राह्मण ये सुझाव देते हैं, सभी ब्राह्मण ये सुझाव देते हैं, आप जल की बूंद ग्रहण कर लीजिए. जल से तो वैसे एकादशी टूटता नहीं, पर क्योंकि निर्जला किया था तो जल से एक बूंद से आपकी निर्जला तो टूट जाएगी, पर साथ साथ में आपने कुछ अन्न नहीं खाया है तो अतिथि का उसमें सम्मान तो होगा. तो ठीक है, अम्बरीश महाराज ने एक ही बूंद पीते हैं एंड दुर्वासा का मुनि को पता चल जाता है. फिर दुर्वासा मुनि उनको अपशब्द कहते हैं और कृत्या प्रकट करके उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं. उतने ही सुदर्शन चक्र आके दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाते हैं और दुर्वासा मुनि भागते भागते कई लोकों से भागते भागते फिर वैकुंठ में सभी जितने भी देवता लोग हैं, सभी शिवजी हो, इंद्र चंद्र वना, कोई भी उनको मदद के लिए नहीं आता है. सभी लोग हाथ ऊपर करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्णा के पास जाइए, विष्णु के पास जाइए. विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु भी हाथ ऊपर करते, मुझे पता नहीं. So Durvasa Muni tried to kill the king when the Sudarshan Chakra, the celebrated weapon of Godhead, appeared on the scene for the devoted king's protection. When the Sudarshan Chakra attacked Durvasa Muni, he fled in fear of the weapon and sought shelter from all the great demigods in heaven. Not one of them was able to protect him, and therefore Durvasa Muni prayed to Lord Vishnu for forgiveness. Lord Vishnu advised him, however, that he wanted forgiveness, he had to get it from Maharaj Ambrish, not from him. In this context, Lord Vishnu spoke this verse. The Lord, being full and free from problems, can wholeheartedly care for his devotees. His concern is how to elevate and protect all those who have taken shelter at his feet. ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला चीज़, भगवान भक्तों की रक्षा करता है. दूसरा चीज़, भगवान का ये कंसर्न है कि वो भगवत धाम में प्रवेश करे या उनसे संबंध बन जाए. तो दूसरा पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्रोटेक्शन उस अकॉर्डिंग होता है. कभी कभी देखते हैं भक्तों के शरीर को रक्षा नहीं की जाती. गजेंद्र शरीर तो पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है, इतना 10,000 साल जब युद्ध लड़ेगा
मगरमच्छ से, तो ऑब्वियसली वो शरीर कुछ काम आने वाला नहीं आगे, तो शरीर की तो रक्षा नहीं करते, उसकी आत्मा का उद्धार कर देते हैं। तो कभी कभी भक्तों को ये अपेक्षा होती है कि भगवान सदैव शरीर की रक्षा करें। नहीं, रक्षा अलग अलग स्तर पे होती है। वो शरीर की भी हो सकती है, मानसिक तौर पे हो सकती है, आध्यात्मिक तौर पे भी हो सकती है। कभी कभी भगवान भक्तों के शरीर को भी बचा सकते हैं, नहीं भी बचा सकते हैं। वैसे तो शरीर नश्वर है, एकदम तो नष्ट होना है। तो डिपेंड्स अपॉन द लॉर्ड, व्हाट लॉर्ड फील्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटी, दैट लॉर्ड विल डू अकॉर्डिंगली एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, लॉर्ड नो इन बेटर वे। अर्जुन को जब श्राप दिया गया उर्वशी से कि तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनो जाओगे, 1 वर्ष के लिए नपुंसक, एक योद्धा के लिए नपुंसक बनना कितना निंदनीय है। पर अर्जुन एक बार भी क्वेश्चन नहीं करते कि कृष्णा आपके होते हुए, आप मेरे मित्र होते हुए मुझे ऐसा श्राप क्यों। ही नोज द प्लान ऑफ लॉर्ड, ही नोज दैट कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है कैसे पॉजिटिव हो जाएगा अर्जुन के लिए। नपुंसक बनना तो नेगेटिव पॉइंट है, पर 1 साल के लिए नपुंसक बनना, उसमें ही बिकेम अ म्यूजिक टीचर and he was able to hide for 1 year. Otherwise to hide for Arjun is very difficult, is nearly impossible. गांडीवधारी अर्जुन को तो सभी पहचानते थे, फिर पकड़े जाते थे, फिर 11-12 साल फिर से वनवास जाना पड़ सकता था। तो that's when the problems comes. We have to understand Lord knows better way how to help us. The same responsibility is also entrusted to the spiritual master. गुरु को पता है कि शिष्य को कैसे हम उद्धार हो सकता है। The bona fide spiritual master's concern is how the devotees who have surrendered to him as a representative of the Lord may make progress in devotional service. The Supreme Personality of Godhead is always mindful of the devotees who fully engage in cultivating knowledge of him, having taken shelter at his lotus feet. कभी कभी खास करके ब्रह्मचारियों को ऐसे लगने लगता है कि हम लोग कहीं देखें हैं कि अरे इतने दिन से हैं, इतना मंदिर में है, फिर भी कुछ चेतना में कुछ फ़र्क नहीं आता है। ऐसे कहीं नहीं हो सकता, चेतना में तो फ़र्क हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अ पर्सन हुई सरेंडर टुवर्ड्स लॉर्ड, कोई व्यक्ति कुत्ते की तरह स्वामी के घर के चौखट पर बैठा हुआ है, स्वामी इतने निर्दयी नहीं कि उसका उद्धार नहीं हो सकता। एंड लॉर्ड कृष्णा नेवर एवर लीव दोज डिवोटीज हु हैव सरेंडर एवरीथिंग फॉर देम। Obviously, Grihastha can also surrender. Any ashram can surrender. ऐसा नहीं कि Arjun was a Grihastha, he surrendered himself. And Durvasa is a brahmachari, he has not surrendered. So surrender is an internal process, especially. Again the same verse जो कोट किया, I don't know, मैंने याद नहीं था, पर ऐसे ही आ रहे थे वर्सेस, and same verses आगे भी हैं। 1.63 again. भवदविदा भागवतास् तीर्थभूतः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अभी पहले वर्ष में कि साधवो हृदय, मैं उसके हृदय में हूँ, वो मेरे हृदय में, मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानता, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। क्यों इतना महत्व? आगे के श्लोक में, वही श्लोक जिसमें युधिष्ठिर महाराज विदुर को कहते हैं 1:13-10, फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर 10th वर्स, भवदविदा भागवतास्, सेंट्स ऑफ योर कैलिबर, युधिष्ठिर महाराज to Vidura, saints of your caliber are themselves places of pilgrimage. Because of their purity, they are constant companions of the Lord, and therefore they can purify even the places of pilgrimage. तीर्थ स्वयं तीर्थ बन जाते हैं। वो तीर्थ में क्यों भ्रमण करते? क्योंकि इतने सारे कर्मी लोग तीर्थ में आते हुए अपने पापों को छोड़ देते हैं। तीर्थ के जलाशय में, वाटर रिजर्वायर्स में, चाहे वो नदी हो, चाहे वो जलाशय हो, चाहे वो पॉन्ड हो, उसमें क्या करते हैं? अपने पापों को त्याग देते हैं। ऐसे नदियों को, ऐसे तीर्थ स्थान को शुद्ध करने के लिए स्वयं जो शुद्ध भक्त है वो जब प्रवेश करते हैं तो वो तीर्थ स्थान शुद्ध हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। So Maharaj Yudhishthira was receiving his saintly uncle Vidura, who had been visiting sacred places for pilgrimage. Maharaj Yudhishthira told Vidura that pure devotees like him are personified holy places because the Supreme Personality of Godhead is always with them in their hearts. फर्क इतना है, सबके हृदय में भगवान है। फर्क इतना है, शुद्ध भक्त साक्षात्कार है, रियलाइज करता है, और जो शुद्ध भक्त नहीं है वो रियलाइज नहीं करता है। बाय देयर एसोसिएशन, रियलाइज करना मतलब क्या है? क्या कुछ अंदर गुदगुदी हो जाएगी क्या? या कुछ लाइट निकल जाएगी क्या? ऐसे कुछ है क्या? या जो हार्ट बीट 1-2 बार बजती है वो 10 बार बजेगी क्या 1 सेकंड में? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। रियलाइज मतलब क्या है? आपके लक्षणों में दिखता है। जिस प्रकार आपको रियलाइजेशन है
कि व्यक्ति को बुखार है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बुखार है तो थोड़ा रेस्ट लेगा, थोड़ा मेडिसिन लेगा, कुछ हैवी एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसको क्योंकि इसको रियलाइजेशन वो बीमार है। जब वो रियलाइज़ नहीं होता है, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी गर्म नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ बीमारी समझ में नहीं आ रहा है, डायबिटीज़ है समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मिठाई खाने लग रहा है, मिठाई खा रहा है। पर जब पता चल जाता है, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज़ है, ये रिपोर्ट है तुम्हारा, रियलाइजेशन आ गया उसको, अभी डायबिटीज़ है मुझे अभी। सी ओनली बाय नॉलेज यू विल गेट रियलाइजेशन, जस्ट बाय नॉलेज ऑल्सो विल गेट रियलाइजेशन दैट डायबिटीज़ है मुझे, सो आई विल स्टॉप ईटिंग शुगर, तो बंद कर देता है। दैट इज़ रियलाइजेशन कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं स्टॉप करूँगा। सिमिलरली व्हेन यू रियलाइज दैट सुप्रीम लॉर्ड इज इन योर हार्ट, योर एक्टिविटीज़ विल बी स्पिरिचुअल, you will act like as if Lord is watching you. That is realization. तो जो शुद्ध भक्त हैं वो ऐसे रहते हैं कि भगवान उनके साथ सदैव है। क्यों? उनके लक्षणों में कभी भी वो 4 नियमों का उल्लंघन नहीं करते, मानसिक तौर पे भी वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते। ओके, थॉट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन कम्स इन माइंड बट दे डोंट एंटरटेन, दैट इज प्योर डिवोटी। ओके, थॉट्स तो आएंगे, यमुनाचार्य तो श्लोक में कहते हैं, यदवधि मामचेत कृष्ण पदारविंद नव नव रसधाम्नि उद्यतुम रंतुमसि तदवधि बटनारि संगमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकार चुष्टु निष्ठि वनम च। यमुनाचार्य किंग, a pure devotee and acharya, a spiritual master of Ramanujacharya, is saying that कि whenever I am enjoying the ecstasy of Krishna consciousness, at that point of time when a thought of enjoying woman comes in my mind, I spit on that very thought and my lips curl into distaste. That is advancement. So Maharaj Yudhishthir told Vidura that pure devotees like him are personified holy places. So by their association, sinful persons are freed from sinful reactions. And therefore, wherever pure devotee goes in sacred place of pilgrimage, wherever a pure devotee goes is a sacred place of pilgrimage. The importance of holy places is due to the presence there of such pure devotees. तो जब पिलग्रिमेज में जाते हैं तो शुद्ध भक्त का संग नहीं लेंगे तो वो पिलग्रिमेज जाना ही, यात्रा जो है आपकी सफल नहीं हो सकती। यत्तीर्थ बुद्धेर सलीलेन करिहिचित जनयेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। वो गधे के समान है, वो गाय के समान है ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाने के बाद सिर्फ डुबकी लगा के आ जाता है। Next verse. Glorification of devotees, glorification of association of devotee, glorification of spiritual master is going parallelly. Sei bhakta ganahaya dvividha prakara parishad ganaika साधक गण आर। ऐसे शुद्ध भक्त 2 प्रकार के हैं। द 2 टाइप्स ऑफ प्योर डिवोटीज। 1 पारिषद, द पर्सनल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड। नंबर 2 साधक। देखिए शुद्ध भक्तों में साधक भी आते हैं, नियोफाइट डिवोटीज भी आ रहे हैं, और दूसरे क्या है, पारिषद है, जो पर्सनल एसोसिएट बन गए भगवान के। सो परफेक्ट सर्विटर्स ऑफ द लॉर्ड आर कंसिडर्ड हिज पर्सनल एसोसिएट। रागात्मिक रागानुगा भक्ति, ये एडवांसमेंट स्टेज है। पहली होती वैधि भक्ति, साधना भक्ति, उसके ऊपर किस तरह आता है, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में यू गेटिंग इंस्पायर्ड बाय इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड। मे बी अ डिवोटी इज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यशोदा माता, और अ डिवोटी इज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय श्रीदामा और अर्जुना और एनी गोपी और मंजरी। दैट कैन बी रागानुगा, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। आपको बोलने की जरूरत नहीं, नो बर्डन दैट टाइम। अभी कैसे है ना, यू फील बर्डन समटाइम्स, 25 माला करना है बाबा, काम इतना बाकी है, बर्डन है। भागवत पढ़ना है, बर्डन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना करना है, टारगेट, बर्डन। कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, इसलिए वैधि भक्ति है ये। बट व्हेन ए स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, ही डोंट हैव टू, किसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, स्पॉन्टेनियसली एक्ट लाइक गुरु महाराज। इफ सी many proper disciples right now who are very seniors, they are continuously engaged in service by compromising their sleep,
Why they are compromising sleep? Because they are getting more happiness in something else. They are getting higher happiness in spiritual activities, and they don't get any happiness in so-called adjusting with material laws also. हमको अभी भी सुख मिलता है, सोने में अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है? So you want to take a rest, but for them rest is like hell. So दो प्रकार के भक्त, पारिषद. So रागानुगा भक्ति के ऊपर का स्तर है रागात्मिका. रागात्मिका is who had already entered into the spiritual realm and he is in that mood और भाव में है, वात्सल्य हो सकता है, साख्य भाव हो सकता है, वो रागात्मिका. उनको फॉलो करने वाले रागानुगा. और उसके नीचे का स्तर है वैदिक भक्ति, कर्तव्य पथ पर कर रहे हैं हम, एक रिचुअल की तरह भी कभी कभी करते हैं. Perfect servitors of the Lord are considered as personal associates, whereas devotees endeavoring to attain perfection are called neophytes. यहाँ पे neophytes का थोड़ा अलग मीनिंग दिया है. हमारा जो यूजुअली नियोफाइट होता है कनिष्ठ भक्त, कि अपराध करता है अथवा भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देता है, भले भगवान के विग्रहों को सम्मान देता है पर भक्तों को सम्मान नहीं देता है, वो भी नियोफाइट है. पर यहाँ पे जो नियोफाइट है ये अलग कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि वन हु इज एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन इज ऑल्सो नियोफाइट. दैट्स व्हाई व्हेनेवर समवन आस्क्स व्हाट काइंड ऑफ क्लास ऑफ डिवोटी, आई एम अ नियोफाइट डिवोटी. हमें कनिष्ठ भक्त हूँ. परफेक्शन अचीव करने से पहले, जो परफेक्शन प्राप्त करने के लिए जो एंडेवर करते हैं, जो प्रोसेस में हैं, ऐसे व्यक्ति को नियोफाइट्स कहते हैं. अमॉन्ग द एसोसिएट्स सम आर अट्रैक्टेड बाय द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ऐश्वर्य भाव, एंड अदर्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूपिशियल लव ऑफ गॉड हेड. न्यूपिशियल मतलब माधुर्य प्रेम, जो वृंदावन व्रज भाव है, वो भाव की बात कर रहे हैं. बहुत इंटीमेट. एक होता है ऐश्वर्य भाव, एक होता है इंटीमेट भाव. ऐश्वर्य भाव में भगवान विष्णु की आराधना यूजुअली होती है, द्वारिका कृष्ण की होती है उसमें. द फॉर्मर डिवोटीज आर प्लेस्ड इन द realm ऑफ वैकुंठ. जो ऐश्वर्य भाव से पूछते हैं भगवान को, वैकुंठ में जाते हैं. टू रेंडर डिवोशनल सर्विस, रेवरेंशियल डिवोशनल सर्विस, सम्मान पूर्वक. Whereas the latter devotees are placed in Vrindavan for the direct service of Shri Krishna. Okay, दो स्तर के उन्होंने पार्षद बताई हैं. एक है ऐश्वर्य भाव से पूजने वाले, दूसरे हैं व्रज भाव से. ओके, दो प्रकार के शुद्ध भक्त, एक है साधक, दूसरे है पारिषद. पारिषद में भी दो विभाजन, ऐश्वर्य भाव और व्रज भाव. Next, 65 and 66 verse. ईश्वरेर अवतार ए तीन प्रकार, अंश अवतार गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार, तृतीयाए मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक जत. अभी शुद्ध भक्त के बाद भगवान के अवतारों की चर्चा चल रही फिर से. अभी शुद्ध भक्तों का वर्णन यहाँ पे कर रहे थे, अभी तुरंत क्या कर रहे हैं, अवतारों का वर्णन. तीन प्रकार की कैटेगरी है. अंश अवतार, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इनकारनेशंस. पुरुष अवतार, that are qualitative incarnations, and मत्स्यादिका यता शक्त्यावेश अवतार. ओके, पुरुष अवतार कैसे हैं, एंड एम्पावर्ड शक्त्यावेश अवतार. तीन प्रकार के अवतार है. द पुरुष एंड मत्स्य, द पुरुषस एंड मत्स्य आर एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल इनकारनेशंस. तो पार्शियल इनकारनेशन के मत्स्य अवतार बताया गया है, एंड द पुरुष भी. तीन प्रकार के अवतार, ईश्वरीय अवतार, ये तीन प्रकार है. एक है अंश अवतार, दूसरा है गुण अवतार, क्वालिटेटिव इनकारनेशंस, और तीसरा है शक्त्यावेश अवतार, दैट इज एम्पावर्ड इनकारनेशंस. इसके बारे में वर्णन जो आगे डिटेल में आपको मिलेगा. ओके, अंश अवतार जो है पुरुष मत्स्यादिक यत. ओके, अंश अवतार में क्या आता है, पुरुष यानी विष्णु के पुरुष अवतार आते हैं, गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु आपको डिटेल में आगे मिलेंगे, और मत्स्यादि का जो दशावतार के जो अवतार हैं जिसमें से वो भी आ जाते हैं.
67th verse. ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतारे गणे शक्तावेश शनकादि पृथुव्यास मुनि. Brahma, Vishnu and Shiva are qualitative incarnations, गुणावतार. रजोगुण में ब्रह्मा जी, सत्वगुण में विष्णु और शिव जी है तमोगुण के अधिष्ठाता. अधिष्ठाता, ये सभी अधिष्ठाता है. एम्पावर्ड इनकारनेशंस आर दोज लाइक द कुमारास. शक्त्यावेश अवतार में कौन कौन आते हैं? 4 कुमार भी आते हैं. पृथु महाराज आते हैं, व्यासदेव जी भी आते हैं, जो कि वाणमय अवतार है भगवान के. ओके. दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश एकेत प्रकाश हय आरेत आरते विलास. So the personality of Godhead exhibits himself in 2 kinds of forms. स्वयं भगवान भी 2 स्तर पे he exhibits himself in 2 kinds of 2 स्वरूप में, प्रकाश अवतार और विलास. भगवान के अवतारों में भेद क्या है? When Supreme Lord expands his personal forms in 2 primary categories, 2 प्राइमरी कैटेगरी है. एक है प्रकाश फॉर्म्स. प्रकाश फॉर्म्स आर मैनिफेस्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा फॉर हिज पास टाइम्स एंड देयर फीचर्स आर एग्जैक्टली लाइक हिज. जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों के साथ जब विवाह किया था, एक साथ 16,000 रूप लिए थे, तो ये प्रकाश भगवान के विस्तार है, प्रकाश विस्तार है. सिमिलरली ड्यूरिंग द रास डांस ऑल्सो, उन्होंने गोपियों के साथ हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण, पर श्रीमती राधा रानी के लिए एक ही था. 2 गोपियों के लिए शेयर किया, पर कृष्ण राधा रानी के लिए एक ही कृष्ण. तो ऐसे कई से कृष्ण हो गए थे. ये प्रकाश है. ओके. मतलब लॉर्ड मैनिफेस्ट इज विलास अवतार. विलास में कौन आता है? लॉर्ड बलराम इज द फर्स्ट विलास एक्सपांशन. स्वयं कृष्ण ही एक्सपांड होते हैं कई लाखों में, हजारों में, वो प्रकाश अवतार में गिना जाएगा. दूसरा है विलास, मतलब कृष्ण से जो विस्तार स्वरूप होता है बलराम जी का, विलास, पहले विलास. So Lord Krishna and the Balram is the first Vilas expansion of Lord Krishna, and फिर उसके बाद चतुर्व्यूह. The 400 Narayan forms in Vaikunta expand from Balram. बलराम के बाद आता है ना संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव. ये सब विलास रूप में गिना जाएगा. There is no difference actually between the bodily forms of Krishna and Balram, except that their bodily colors are different. Similarly, Sri Narayan in Vaikunta has 4 hands, whereas Krishna has only 2. The expansions of the Lord who manifest such bodily difference are known as Vilas Vigrahas. भले ही चतुर्भुज रूप है, पर विलास विग्रह है. और प्रकाश विग्रह का है द्विभुज रूप में होगा. भगवान कृष्ण ही अपने आप को विस्तार करते हैं सेम अवतार, सेम रूप में, वो प्रकाश अवतार. और चतुर्भुज रूप में जब विस्तार करते हैं और बलराम जी के इसमें विस्तार करते हैं, वो विलास अवतार. कई लोग कहेंगे इतना डिटेल में ज़रूरत क्या है, ये कन्फ्यूजन क्यों? जहाँ पे जा रहे हैं ना, उसके पहले जानकारी होना आवश्यकता है ना. जैसे आप यूएस जाते हैं तो पहले कितनी जानकारी लेते हैं ना, वीज़ा भी निकालते हैं, तो फिर जानकारी वहाँ पे क्या कैसे रहना, कैसे क्या करना है. तो देन यू कैन सिलेक्ट. इफ़ यू गिव सम मेनी ऑप्शंस देन यू हैव एन ऑप्शंस ऑल्सो. क्या करेंगे, कौन से लोक में जाएंगे. वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. चैतन्य चरितामृत.